Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture we are going to discuss about cuboidal epithelial tissue. We know that epithelial tissue, they are epidermal or mesodermal or endodermal in origin, and they are tightly packed, tightly attached to one another and make a continuous sheet, and they involve in various functions like protection, excretion, secretion, mechanical support, and five main different type of epithelial tissue, that is squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue, columnar epithelial tissue, ciliated epithelial tissue, and glandular epithelial tissue. And they can also classify into two group. One is the simple epithelial tissue, means single layer of cells lay on the basement membrane, and multi-layer of cells, more than one layer of cells lay on the basement membrane, that is the stratified or compound epithelium, and single layer, that is the simple epithelial tissue. So here we are going to discuss about the cuboidal epithelial tissue. So this one is the simple cuboidal epithelium and this one is the stratified cuboidal epithelium. Okay. So the cells of simple cuboidal epithelial tissue, they are cube like. कैसे होती है ये सेल? क्यूब लाइक होती है और सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है. जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर ऑफ द सेल में होता है. तो कुछ इस तरह से दिस इज द double layer non-cellular basement membrane, and the cells are cube like this. These are the cube like cells like this, and nucleus is centrally placed nucleus. So these are the nuclei and nucleus कैसा है? Centrally placed है. So this is the centrally placed nucleus, and this is the basement membrane. All the type of epithelial tissue lay on the basement membrane. So this is the cube like cells and the nucleus is in the center. So these are the simple cuboidal epithelial tissue, single layer of cells. And these simple cuboidal epithelial tissue, there are many types like the ciliated cuboidal epithelial tissue, pigmented cuboidal epithelial tissue, germinal cuboidal epithelial tissue, and brush border cuboidal epithelial tissue. See here, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द फ्री सरफेस. इसको क्या बोलेंगे हम? फ्री सरफेस ऑफ सेल है ये. और ये जो साइड है सेल का, इसको बोलते हैं हम लैटरल साइड या लैटरल सरफेस. क्लियर? और ये जो लोअर मोस्ट है इसको बोलेंगे क्या हम? बेसल सरफेस. तो थ्री सरफेसेस प्रेजेंट है सेल में. बेसल सरफेस जो लोअर मोस्ट है, दैट सरफेस ऑफ द सेल अटैच ऑन द lay on the basement membrane, that is the basal surface. और जो ऊपर का सरफेस है दैट इज द अपर सरफेस, और ये कैसा है? फ्री सरफेस है. और ये जो साइड में है दैट इज द लैटरल सरफेस. क्लियर? तो समटाइम्स द फ्री सरफेस ऑफ द cuboidal epithelial cells have the minute thread-like, minute hair-like structure, and these hair-like, minute thread-like structures known as the cilia. So cilia present on the
upper free surface. That's why they are the ciliated cuboidal epithelium. अगर इस तरह से cilia इस तरह से प्रेजेंट है, स्मॉल थ्रेड लाइक, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सो दे आर व्हाट, दे आर द cilia. And cilia bearing epithelial tissue, that is the ciliated cuboidal epithelial tissue. तो जो ciliated cuboidal epithelial tissue है वो इपेंडाइमा में प्रेजेंट होता है. इपेंडाइमा का मतलब होता है लाइनिंग ऑफ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो सेंट्रल कैनाल होता है, और वो सेंट्रल कैनाल के लाइनिंग को क्या बोलते हैं हम, इपेंडाइमा बोलते हैं. तो इस इपेंडाइमा में प्रेजेंट होता है क्या, सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होता है. क्लियर. और सम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन दैट इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ द एक्सक्रेशन. तो जहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो सम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में भी क्या प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. दूसरा है पिगमेंटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. तो पिगमेंटेड मतलब सर्टेन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन विजन, जो देखने में हेल्पफुल होते हैं. क्लियर. तो जैसे कि कोरॉइड लेयर ऑफ आईज, आईज में 3 लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट लेयर को हम स्क्लेरा बोलते हैं, मिडल लेयर को कोरॉइड बोलते हैं, और इनर मोस्ट लेयर को रेटिना बोलते हैं. तो जो मिडल लेयर है, कोरॉइड लेयर ऑफ आई, यहां पे भी क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. क्लियर. और सम पार्ट ऑफ रेटिना, रेटिना इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई में भी क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो दिस इज द पिगमेंटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट, जर्माइनल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. तो जर्माइनल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो वॉल है इस तरह से जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इनर लाइनिंग है इस तरह से, तो ये किससे लाइंड बाय होता है, दिस इज लाइंड बाय द क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. क्लियर. और उसी तरह से ओवरी में भी, ओवरी का जो इनर लाइनिंग है दैट आल्सो लाइंड बाय द क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. तो क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है कहां पे, इन द इनर लाइनिंग ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी. टेस्टिस मीन्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर लाइनिंग में जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और ओवरी के इनर लाइनिंग में जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. और इन्हीं से आगे चल के क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होगा, मतलब स्पर्म मदर सेल, देन स्पर्म का फॉर्मेशन होगा. यहीं से क्या होगा, ओवम मदर सेल, उगोनिया का फॉर्मेशन होगा, देन ओवम का फॉर्मेशन होगा. क्लियर. तो जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड इनर वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. नेक्स्ट हमारा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. तो जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन. पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. ढेर सारे पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, सीटी, सीडी, डक्ट ऑफ बेलनी. These are the various part of the nephron. तो जो PCT है, proximal convoluted tubule, that part also lined by the brush bordered, मतलब क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू ब्रश के बॉर्डर की तरह अपीयरेंस देंगे. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. तो ये कहां पे प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू. Okay, now we see stratified cuboidal epithelial tissue. तो stratified का मतलब क्या, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू ले ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. कुछ इस तरह से डायग्राम रहेगा इसका. दिस इज द डबल लेयर
non-cellular basement membrane. This is the basement membrane. ओके, और इस तरह से सेल्स अरेंज है यहाँ पे. इसी तरह से बना लेंगे हम लोग. इस तरह से दिस इज द सेकेंड लेयर. फिर नेक्स्ट डाल देंगे इस तरह से, दैट इज द थर्ड लेयर है. तो इस तरह से मल्टी लेयर्ड सेल प्रेजेंट होगा. तो इसी को बोलते हैं हम स्ट्रैटिफाइड या कंपाउंड एपिथेलियम. तो यहाँ पे सेल्स कैसी हैं, क्यूब लाइक हैं, और जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली प्लेस्ड है, सेंट्रली लोकेटेड है इस तरह से. सो दीज आर द न्यूक्लियाई, they are centrally located and the cells are cube like and multi-layered, more than one layer. So they are considered as the stratified cuboidal epithelial tissue. Clear? These are the multi-layered cells. Okay, multi-layered cells, and these are the nucleus. These are the nuclei. तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो स्किन ऑफ फिशेस, जो फिश की स्किन होती है वहां पे स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. सलाइवरी डक्ट, जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा का सेक्रेशन करती है. 3 पेयर्स सलाइवरी डक्ट होते हैं. तो इनमें भी, सलाइवरी डक्ट में भी क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू होता है. पैनक्रियाटिक डक्ट है, यूरेथ्रा है, कॉन्जेनेक्टिवा ऑफ आईज है, डक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड. ठीक है, तो जो मिल्क ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, यहाँ पे भी स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है. क्लियर? सो दीज आर द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट, लाइक द स्किन ऑफ फिशेस, salivary duct, pancreatic duct, urethra, conjunctiva of eyes, and duct of mammary gland. Clear? And what are the various functions performed by the cuboidal epithelial tissue? So their functions are absorption. ये absorption में help करेंगे, certain substance का absorption करने में help करेंगे. Excretion मतलब removal of certain substance के लिए help करेंगे. Secretion है ना, कुछ चीजों का सेक्रेशन करने में हेल्प करेंगे. एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस लाइक द एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन, सेक्रेशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट. सो दीज आर अबाउट द cuboidal epithelial tissue. In next lecture we will discuss about the columnar epithelial tissue. Link is given in the description for notes. And I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.